প্রধান অতিথির আগমন। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমরা সবাই বসে পড়ি ভাই, সবাই বসে পড়ি। আমরা चैन होगा न सुकून होगा। और दूसरा अजाब क्या है? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। दूसरा अजाब ये है कि जो मेरी बातों को सुन करके अमल नहीं करेगा, भुला देगा, तो मैं क़यामत के दिन जब उसको उसकी कब्र से उठाऊंगा तो अंधा करके उठाऊंगा, उसकी आंखों की रोशनी छीन लूंगा। वो आदमी गिरता पड़ता किसी तरह खुदा के दरबार में पहुंचेगा और वो सवाल करेगा, कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। कहेगा ऐ रब, मैं दुनिया में था तो मेरी आंखों में रोशनी थी, आज तूने मुझे कब्र से उठाया तो अंधा करके क्यों उठाया? वो खुदा से पर सवाल करेगा, एतराज़ करेगा। अल्लाह उसके एतराज़ का क्या जवाब देगा? क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहेगा ये बात सही है, तेरी आंखों में रोशनी थी, लेकिन तेरा हाल क्या था? तेरे सामने मेरी आयात को पेश किया जाता, मेरा जिक्र किया जाता, मेरे अहकाम को रखा जाता, लेकिन तू सुनी अनसुनी कर देता था। तूने दुनिया में मुझे भुलाया, आज मैं तुझको भुला देता हूँ। मेरे दोस्तों, खुदा अगर भुला दे मैदान महशर में तो वो कौन सा दर होगा जहाँ जाकर इंसान रहम व करम की भीख मांगेगा। इसलिए आज से तैयारी करो कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस्लाम का जो हुक्म, कुरान का जो हुक्म, नबी का जो फरमान, दीन की जो बातें हम सुनेंगे, फ़ौरन उस पर अमल की कोशिश शुरू कर देंगे। জাযাকুমুল্লাহ খাইরাল জাযা। মুহতারাম হাজিরিন, আমাদের সম্মানিত মেহমান, তিনি কোরআনে কারীমের যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন ওয়াবাশশিরিল মুখবিতিন। হে নবী, আপনি যারা আল্লাহর প্রতি ধাবিত, আল্লাহর দিকে যারা ঝুঁকে, তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দান করুন। যারা নেকির কাজ করবে, চারটা সুন্দর যতনটা খুবই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে উল্লেখ করেছেন, ভালো কাজের কথা। যারা এগুলো করবে তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুসংবাদ দিয়েছেন। তারা হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুমের প্রতি ধাবমান, আল্লাহর প্রতি ঝুঁকনেওয়ালা, যারা নাকি এই চারটা কাজ করবে। আল্লাহ এর বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন। প্রথম হলো আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম। তাদের সামনে যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, আল্লাহর জিকির হয়, আল্লাহর আহকামাতের বিধিবিধানের আলোচনা করা হয়, আল্লাহর কথা যখন তাদের সামনে পেশ করা হয়, তো তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, তাদের অন্তরে আমলের জজবা সৃষ্টি হয়, দ্বীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, আল্লাহর হুকুম মানার প্রতি তাদের ভিতরে জজবা সৃষ্টি হয়, এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আমরা এর উপরে আমল করব। হযরত আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন আমরা আমল করব তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের অন্তরেও আমলের প্রতি জজবা এবং আগ্রহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেন। আর যদি কোনো মানুষ দ্বীনের কথা শোনার পরেও, আল্লাহর কথা শোনার পরেও, আল্লাহর বিধানের কথা শোনার পরেও যদি তার অন্তরের ভিতরে যদি আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও থাকবে, শাস্তি থাকবে। কি ধরনের শাস্তি থাকবে? দুই ধরনের শাস্তি থাকবে, একটা হলো দুনিয়াতে আর একটা হলো আখিরাতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন, ওমান আ'রাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান দানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান তার সামনে আসার পরেও সে মুখ ফিরিয়ে নিল, আল্লাহ বলেন তার জন্য পার্থিব জীবনে, দুনিয়ার জীবনে আমি তাকে পেরেশানির জীবন দিয়ে দিব, সংকীর্ণময় জীবন দিব। তার কাছে বাড়ি থাকবে, তার কাছে টাকা পয়সা থাকবে, তার কাছে পরিবার পরিজন থাকবে, সন্তান থাকবে, কিন্তু সে শান্তি পাবে না। সে অশান্ত অবস্থায় ঘুরে ফিরে বেড়াবে। যদি সে আল্লাহর হুকুম থেকে নিজে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহর হুকুম আসার পরে সে যদি তার ভিতরে আমল করার জজবা যদি তার ভিতরে সৃষ্টি না হয়। হযরত বলেন যে আপনারা যেন প্রতিজ্ঞা করি যে আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলবো তো ইনশাআল্লাহ। এবং যেখানেই আল্লাহর বিধানের কথা আসবে, আল্লাহর কোনো হুকুম আমরা শুনবো, সেটার প্রতি আমলের প্রতি জজবা আমাদের অন্তরের ভিতরে আমরা সৃষ্টি করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। কোনো মানুষ যদি আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়,
আল্লাহর হুকুম তার সামনে আসার পরেও তার আমলের প্রতি যদি সে আগ্রহী না হয়, পার্থিব জীবনে তো পেরেশানির জীবন তার জন্য থাকবে, আর আখিরাতের জিন্দেগি, পরকালের জিন্দেগি তো তার জন্য বড় শাস্তি যে অপেক্ষা করছে। আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেছেন এই আয়াতে, ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা, এবং তাকে কাল কিয়ামত দিবসে আমি অন্ধ হিসেবে উঠাবো। নাউযুবিল্লাহ। তো ব্যক্তি বলবে তার চোখের আলো আমি ছিনিয়ে নিব। তো আল্লাহ বলেন কোরআনে কারীমে, সে ব্যক্তি বলবে ক্বালা রাব্বি লিমা হাশারতানি আ'মা ওয়া ক্বাদ কুনতু বাসীরা, হে আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি আপনি কেন কেড়ে নিলেন? আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম, আমার তো চোখ ছিল, আমি তো দেখতাম, কিন্তু আমি আজকে দেখতে পারি না কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন ক্বালা কাযালিকা আতাতকা আয়াতুনা ফানাসীতাহা ওয়া কাযালিকা আল-ইয়াওমা তুনসা, আরে তোমার কাছে আমার বিধান আসছিল, আমার হুকুম তোমার সামনে এভাবে এসেছিল, কিন্তু তুমি এবার থেকে মুখ ফিরিয়েছিলে, তুমি এটাকে ভুলে গিয়েছিলে, এজন্য আজকেও তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদেরকে ভুলে যান তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে? এজন্য মুহতারাম হাজিরিন, আল্লাহ যদি হযরত বলেন আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভুলে যান তাহলে আমরা কার কাছে যাব? কোন যাওয়ার জায়গা আছে? নাই। এজন্য মুহতারাম হাজিরিন, আল্লাহর বিধান, আল্লাহর হুকুম যখন আমাদের সামনে আসবে তো এর ভিতরে আমরা আমলের জজবা নিয়ে আমল করার চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. अगर तुम मुखबित बनना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, तो अपने अंदर 4 खूबियां पैदा करो। उसमें से दूसरी खूबी क्या है? वस्साबिरीन अला मा असाबहुम। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई दुख न पहुंचा हो, जिसको कोई गम न पहुंचा हो, जो किसी तरह की परेशानियों में न फंसा हो। अगर तुम जन्नती बनना चाहते हो तो फ़राइज़ को अदा करने के साथ साथ ये 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करो। दूसरी खूबी यह है कि जब कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई दुख पहुँचे तो अल्लाह के लिए उस पर सब्र करो, किसी से शिकायत मत करो, चीखो चिल्लाओ मत, रो मत, किसी के पास जाकर के अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब मत करो। जब तुम मुसीबतों पर सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत की नेमतों से मालामाल फरमाएगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है? वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। क्या मतलब? आगे खुद साबिरीन की वजाहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम। जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, शिकायत नहीं करते, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते, बल्कि दिल की गहराइयों से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह क्या कहता है कि जो मुसीबत पर सब्र करे और इन्ना लिल्लाह पढ़े, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उसके ऊपर खुदा की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। परवरदिगार उसको अपने फजल व करम और नेमतों से मालामाल करता है। मेरे दोस्तों, सब्र करना सीखो। और सब्र का क्या मतलब है, मैं एक वजाहत करता चलूँ। मुसीबत पर भी सब्र होता है, और जब मुसीबत पर सब्र करने वाले बनना चाहते हो तो देखो कुरान की तालीम है कि मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ो, सब्र करने वालों में तुम्हारा नाम शामिल हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में इन्ना लिल्लाह की फजीलत बयान करते हैं। कहते हैं कि अब से मिसाल के तौर पर 10 साल पहले
15 साल पहले कोई मुसीबत आई थी, 15 साल के बाद वो मुसीबत किसी इंसान को याद आती है, और जैसे ही वो मुसीबत याद आती है वो फौरन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो 15 साल पहले मुसीबत पर सब्र करने की वजह से जो अजर व सवाब मिला था, आज भी इन्ना लिल्लाह पढ़ने से वही अजर व सवाब तेरे नाम आमाल में लिख दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, एक बात और जहन में रखो, सब्र की 2 किस्में और हैं। ये तो मुसीबत पर सब्र है, सब्र की 2 किस्में और हैं, सब्र अला ताअत और सब्र अलल मासियत। सब्र अला ताअत क्या है? सर्दी का मौसम है, आप लिहाफ में लेटे हुए हैं, बाहर ठंड हो रही है, फजर की अजान पर मुअज्जिन कहता है आओ नमाज के लिए, आप हिम्मत करते हैं, लिहाफ को हटाते हैं, सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, वुज़ू करते हैं, नींद को कुर्बान करते हैं, मस्जिद में पहुंच जाते हैं। अल्लाह इस पर भी सब्र का अज्र व सवाब अता फरमाएगा। यह है सब्र अला ताअत। और एक किस्म और है, जवानों सुनो इसे भी, सब्र अलल मासियत। कोई गुनाह तेरे सामने हुआ, तेरा जी चाहा कि वो गुनाह मैं भी करूं, मैं भी पिक्चर देखूं, मैं भी गाने सुनूं, मैं भी उल्टी सीधी हरकत करूं, तेरा जी चाह रहा है गुनाह करने को, लेकिन अल्लाह के खौफ से तू उस गुनाह को छोड़ दे। जैसे ही खुदा के खौफ से तू गुनाह को छोड़ेगा, खुदा तेरे नाम आमाल में सब्र का अज्र व सवाब लिख देगा। खुदा के डर से गुनाहों को छोड़ना ये भी सब्र है, और खुदा की मोहब्बत में इताअत को अंजाम देना ये भी सब्र है। और मुसीबतों पर सब्र करना, इसको तो हम और आप सब्र कहते ही हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, सब्र का फल क्या होता है? एक हदीस सुना के आगे बढ़ता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी के छोटे बच्चे की वफ़ात होती है, छोटा बच्चा है, अभी 2 दिन का 3 दिन का है, उसकी वफ़ात हो गई, फरिश्ते खुदा के पास जाते हैं तो खुदा उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदे के दिल के टुकड़े की रूह कब्ज़ की, छोटे से बच्चे की रूह कब्ज़ की, मेरा बंदा क्या कह रहा था? तो फरिश्ते कहते हैं कि वो तो सिर्फ इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा था और कुछ नहीं कह रहा था, वो तो इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा था, अल्लाह की हम्द और सना कर रहा था और इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा था। तो खुदा कहेगा फरिश्तों से कि जाओ जन्नत में उसके लिए एक महल बनाओ, जाओ जन्नत में उसके लिए एक महल बनाओ, और उस महल का नाम भी खुदा बताता है, कहता है वह सम्मूहु बैतल हम्द, जाओ उस घर के ऊपर लिख दो कि यह अल्लाह की हम्द और सना और सब्र करने वाले का महल है। मेरे दोस्तों और साथियों, आओ हम भी तय करें कि इंशाअल्लाह मुसीबत पर भी सब्र करेंगे, अल्लाह की इताअत करते हुए भी सब्र से काम लेंगे, और गुनाहों से बचते हुए भी सब्र के दामन को नहीं छोड़ेंगे, तो खुदा जन्नतियों की फहरिस्त में तुम्हारे नाम को शामिल कर देगा। मोहतरम हाज़रीन, আমাদের সম্মানিত মেহমান কোরআনে কারীমের যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা আল্লাহর দিকে ধাবমান তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার